Well, it's 7 o'clock, and welcome to the family devotion time, family prayer time. Thank you once again. And we have just been waiting for a couple of days to come back and worship with you, spend time with you. Thank you so much for joining us this evening. And yesterday I spoke about our lockdown limitations are God's kingdom invitations. This is time that we could get closer to God, and I have a word for you this evening. So before that, let's spend some time in worshiping the Lord, and we have these wonderful people here leading us in worship. Let's enjoy this time of worship. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Our God is worthy of glory, honor, and praises. और हमारे परमेश्वर योग्य हैं स्तुति के, सामर्थ के और महिमा के। And this week is probably the last week for the lockdown. और आज का समय हमारे लिए वास्तव में लॉकडाउन समाप्त होने वाला समय था। It's this whole week, maybe the time that maybe the lockdown will be over by the end of this week, or maybe some days in next week also. और फिर हमारा जो लॉकडाउन है वो समाप्त होगा इस वीक या आने वाले कुछ समय में। But I want all of you to make this a habit or a time together to come as a family. Even if the lockdowns are not there, we are not there, but let's make this as a habit of coming together, spending time in prayer, singing a song, and reading from the scripture, and spending time in family prayer. और मेरा अनुरोध है कि हम जब लॉकडाउन समाप्ति भी हो जाए या ना हो, हम एक साथ इस प्रकार से आएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन अध्ययन करने में और प्रार्थना करने में अपने समय को व्यतीत करें। Because family prayer is very important for every child of God. क्योंकि पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी है हर एक परमेश्वर के संतानों के लिए। Even if you don't go to a church, you are not a part of the church, that is fine. You can still be a part of, you can still download the Bible. If you don't have a Bible, you can download it and read it. And then, when the lockdowns are over, you can get a Bible
and it's a great blessing, and God will bless your family through this. और हो सके तो आप चर्च नहीं आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप समय को व्यतीत कर सकते हैं। Well, I would like to talk to you this evening about get ready for the next season. और आज की शाम के समय में आप लोगों को जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो मेरा विषय ये है कि हम तैयार हो जाए आने वाले समय के लिए। Well, this is a season, and this season came upon us all of a sudden. None of us expected it. और ये जो समय, ये जो मौसम आया है और ये एकदम अचानक से आया और हम सब इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, किसी ने प्रतीक्षा नहीं की थी। Coronavirus came from nowhere. और जो कोरोना वायरस कहाँ से आया उसके लिए कोई भी हम नहीं जानते। And we were not expecting a season like this to be under, within four walls and just locked down and not much of freedom. We have a lot of limitations upon us. और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से लॉकडाउन होगा, हम चार दीवार के अंदर बंद जाएंगे और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कभी इसका प्रतीक्षा नहीं किया था। Well, but these days, if we seek the presence of God, seek His kingdom and His righteousness, I believe that God will give a new direction for all of us to face the next season that is going to come. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन इन दिनों में जब हम लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन हम उसको, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजेंगे तो परमेश्वर आने वाले समय में एक ऐसा समय को देगा जिसमें हम बहुत आशीष को देखेंगे। So these limitations can be a blessing in disguise for all of us, and this can be kingdom invitations. और फिर ये जो सीमाएं हम सबको सीमित करके रखी है, लेकिन ये जो सीमाएं हैं परमेश्वर के राज्य के लिए हमें एक निमंत्रण को दे रहा है। Well, I would like to read a scripture and talk a little bit about prayer today. और आज मैं आप लोग के सामने में परमेश्वर के वचन से एक पद को पढ़ूंगा और उस पे आज हम एक साथ सीखेंगे। And how prayer can, just turn things around for your life and for the future and take away uncertainties and give God's definite plan for us. और किस प्रकार से प्रार्थना हमारी अनिश्चितता को बदलकर हमें एक दिशा को देके और हम उस निश्चितता की ओर बढ़ेंगे। Acts chapter 10 verses 1 and 2. और प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय का पहला और दूसरा पद। It says, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. और कैसरिया में कोर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। He and his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. वो भक्त था और अपने सारी घराने से परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। And these 5 words here, he prayed to God regularly. और यहाँ पे जो 5 शब्द दिया गया कि वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता था। And this tells us everything about that we need to know about Cornelius. और ये जो 5 शब्द हैं हमें सब कुछ बताता है कुरनेलियुस के बारे में। The Bible does not say when he prayed, where he prayed, how he prayed. और बाइबल नहीं बताते हैं कि कुरनेलियुस ने कब प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की और क्या प्रार्थना की। But he had this habit of praying to God regularly. लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसके पास एक आदत था प्रार्थना का, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना। See, let me say this, when you pray to God regularly, irregular things can happen on a regular basis. और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग नियमित प्रार्थना को करेंगे तो आपके जीवन की जो अनियमितता है वो आपके लिए नियमित तौर पर बदल जाएगी। God can bring supernatural appointments and miracles in your life if we seek God's face on a regular basis. और यदि आप दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के चेहरे को निहारेंगे, उसको खोजेंगे, तो आपके जीवन में ऐसी अनहोनी बातें एक आत्मिक अलौकिक रूप से आपके जीवन में घटेगी। See, I have a chess board here. और आज मेरे सामने में एक चेस का बोर्ड है। I am not a chess fan, or I am not a big chess player, but Joyce is, it's only for brilliant people, and I am not one of those. She is a very good chess player. और फिर हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे सामने एक चेस बोर्ड रखा है और मैं चेस बोर्ड में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, मैं उसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखता हूँ।
well, you need to be a very strategic person to play chess. और फिर इस खेल को खेलने के लिए हमें बहुत ही ध्यान और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होना And जरूरी है। see, God sometimes is like a grandmaster in chess. और परमेश्वर कई बार एक बुद्धिमान चेस मास्टर के जैसा होता If है। our life is, it's a chess, and God is the master, and if you are a praying person, God will guide you and He will position you in the right place on a regular basis. और फिर परमेश्वर, हम अगर एक चेस है तो परमेश्वर वो बुद्धिमान जैसे एक खिलाड़ी जैसा है जो हमें जिस प्रकार से चेस मास्टर एक एक गोटी को आगे बढ़ाता है, वैसे परमेश्वर भी हमारे दिन प्रतिदिन दिन में एक देवी के रूप से हमें जहाँ पर रहना वो देवी स्थान में हमें रखना है। And He will bring divine appointments. और वो एक देवी के अपॉइंटमेंट हमारे जीवन में लेकर आता है। And that will bring God's blessings and He will direct our lives. और वो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है और हमारे जीवन को एक दिशा को देता है। See, now how do you discern the next move? और हम किस प्रकार से समझ सकते हैं या फिर जान सकते हैं हमारा अगला कदम को। Sometimes we get struggled, how do I make the next move? और कई बार हम संघर्ष करते हैं कि हम अगला कदम को कैसे रखें। But then prayer is the way that we can discern the next move. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें अगला कदम रखने के लिए हमें ज्ञान को देता है, मार्ग को दिखाता है। Let me make it very clear to you. और मैं आप लोगों को बहुत साफ तरीके से बताना चाहता The हूँ, plans of God are only revealed in the presence of God. और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रकट तभी होगी जब हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में बैठते हैं। The plans of God are only revealed in the presence of God. और परमेश्वर की योजना तभी प्रकट होती है जब हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में समय व्यतीत करते So हैं। we get our marching orders from the presence of God when we go on our knees into the presence of God. और फिर हम अपने दिन प्रतिदिन के आगे बढ़ने के लिए हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति अपने घुटनों में बैठ के प्रार्थना में बैठते हैं। Just imagine, history is a match of good and evil. और फिर आप कल्पना करिए जो इतिहास है एक भले और बुरे खेल के खिलाड़ी के जैसे हैं। Then Acts chapter 10 is an impressive move by God. और फिर प्रेरितों का काम 10वां अध्याय जो कि एक देवी के चलन के बारे में बताता है। And this impressive move can tell us, how important prayer is and how prayer can change the whole game. और ये जो प्रभावशाली चलन हमें ये बताती है कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है एक आगे कदम रखने के लिए और एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए। It tells us like how when two people come together and pray, and how great things can happen in our lives, in the world, and it's a proof. The Acts chapter 10 is a proof of that. और इस हम जान सकते हैं कि जब दो व्यक्ति एक साथ आके प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के उत्तर के द्वारा किस प्रकार से इतिहास में इतना बड़ा बदलाहट आती है, पूरे संसार में बदलाहट आती है, और उसके जो गवाही को हम देखते हैं, उसके जो सबूत को हम पाते हैं प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में। So it reveals the power of God and how God can checkmate the enemy and destroy the plans of the enemy and give us victory. और ये हमें बताता है कि किस प्रकार से प्रार्थना सामर्थ्य है कि जैसे कि चेस खिलाड़ी जो खेलता है और अपने शत्रु को हरा देता है। So okay, as I said, history, just imagine that history is a match between evil and good. और जैसे मैंने आपको बताया कि इतिहास जो भी है कि एक बुरा और भले खेल के जैसे हैं। And how God has changed everything. और कैसे परमेश्वर पूरी तरह सब कुछ बदल देता है। This is already how it happened. और यही यहाँ पे हुआ। There was a man named Cornelius. और यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है कुरनेलियुस। And he has a vision while he was praying in Caesarea. और जब वो कैसरिया में प्रार्थना कर रहा था तब उसे एक दर्शन मिला। At the same time, Peter was praying in Joppa and he has a vision. और उसी समय उसी समय पत्रस प्रार्थना करता जोपा में, उसको भी दर्शन मिला। So God gave a vision to Cornelius in Caesarea and then Peter in Joppa. और परमेश्वर कुरनेलियुस को दर्शन दिया जब वो कैसरिया में प्रार्थना कर रहा था, और पत्रस को दर्शन दिया जब वो जोपा में प्रार्थना कर रहा था। And both these towns are 53 kilometers apart. और ये जो दोनों नगर थे वो 53 किलोमीटर दूरी में था। But God collide, bring both these visions together, both these people together
for kingdom purpose. और लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों व्यक्तियों को एक साथ मिलाया परमेश्वर के राज्य के मकसद के लिए। And it changed the history of the history of the world. और पूरे संसार के इतिहास को इसने बदल दिया। You may not know about, initially the church was not called as church. It was called the way. और आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो पहले दशक में जो चर्च को चर्च का नाम से नहीं जाना जाता था लेकिन मार्ग के नाम से जाना जाता था। Because we know that Jesus was a Jew. और हम सब जानते कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे। And all the disciples were Jews. और पूरे उनके जो चेले थे वो यहूदी थे। And on the upper room, they were all Jewish people getting saved. And it was a sect, a small group of Judaism. और फिर वो जो यहूदी लोग ऊपरी कक्ष में के प्रार्थना कर रहे थे, एक छोटा सा झुंड था और वो छोटे से झुंड। And that sect of Judaism is called the way. और ये जो यहूदी लोगों का एक छोटा सा झुंड था उसी को वो लोग मार्ग के नाम से संबोधित करते थे। But Cornelius, an officer with the Roman army, और लेकिन यहाँ पे जो कुरनेलियुस जो एक सूबेदार था, and he puts his faith in Jesus Christ. और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। From that day onwards, और उस दिन से gospel was opened to the whole Gentiles. और उसके बाद जो मसीहत का द्वार खुल गया सारे अन्य जातियों के लिए। Please don't misunderstand me. Sometimes we say the Gentiles are some other people. और आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा, मुझे ना गलत समझिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि अन्य जाति हम नहीं और कोई लोग हैं। But in the Bible there are only two groups. लेकिन बाइबल में सिर्फ दो ही झुंड को हम देखते हैं। If you are a Jew, that you are one, and if you are a non-Jew, all the non-Jews are called Gentiles. और यदि आप यहूदी वंश के हैं तो आप यहूदी जाति में आएंगे, अगर आप यहूदी नहीं है तो आप सब लोग हम सब के सब अन्य जाति कहलाएंगे। So Cornelius was not a Jew. और कुरनेलियुस यहाँ पे यहूदी नहीं था। But God gave a vision to him. लेकिन परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया। And then God gave vision to Peter in Joppa. और परमेश्वर ने दर्शन दिया पतरस को जोपा में। Until then everybody thought that it's only Jesus came only for the Jewish people. और उस समय तक लोग सोचते थे कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए। But that day what happened? लेकिन उस दिन क्या हुआ? When two people prayed together. और जब दो व्यक्तियों ने प्रार्थना किया। Cornelius was a praying person. और कुरनेलियुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। And then Peter was a praying person. और पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Both of them prayed. और दोनों ने प्रार्थना And की। God brought them together. और परमेश्वर ने दोनों को एक साथ That मिलाया। opened the way for the gospel for the whole universe, for the whole world. और जिसने पूरे संसार के लिए सुसमाचार के लिए द्वार को खोल दिया। And that prayer has been answered from that day till now. Millions, maybe crores of people have come to the Lord because of the prayers of two people. और दो लोगों की प्रार्थना के कारण क्या हुआ? उस दिन से लेकर आज तक 2000 साल तक अनेक करोड़ों लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए। When Peter entered the house of Cornelius, जब पतरस ने कुरनेलियुस के घर के अंदर प्रवेश किया, he broke every law of the Jewish people. और उसने यहूदियों के सारे कानून और नियम को तोड़ दिया। And that day, और उस दिन God opened the way for the whole world. और परमेश्वर पूरे संसार के लिए द्वार को खोल दिया। And God said to the whole world that whosoever will may come into the kingdom. और परमेश्वर ने उस दिन ने कहा कि जो कोई भी इच्छा रखता है वो इस द्वार के अंदर से अंदर प्रवेश कर सकता It है। all happened because of people are praying. और ये इसलिए हुआ कि जब लोगों ने प्रार्थना किया। Prayer has changed the history of the world. और प्रार्थना ने इतिहास को बदल दिया। See, when you seek after God, और जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, God can do great and mighty things through your prayer. और परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा महान और सामर्थ्य कार्य को करेगा। Your impossible things can become possible because of prayer. और प्रार्थना के द्वारा आपके असंभव कार्य संभवता में बदल जाएगी। See, maybe God in His grace has removed everything from us. और हो सकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब में पूरी तरह से निकल जाए। Otherwise, we are all very busy people. नहीं तो फिर हम क्या होते हैं, सब लोग बहुत व्यस्त लोग We हैं। have no time. हमारे पास समय नहीं है। But God removed everything from us. और परमेश्वर अभी हमसे सब कुछ निकाल Now दिया। you don't have to go to job. अब हम नौकरी नहीं जा सकते। Now you don't have to go to the school. हम स्कूल नहीं जा सकते। Now you don't have to go to shopping. और हम शॉपिंग करने नहीं जा सकते। Everything is taken away from us. और हमसे सब कुछ ले लिया गया है। Maybe it is God's grace that God is giving us this time that we can turn to Him. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस समय हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। So don't
waste this lockdown time. इसलिए आप अपने लॉकडाउन के समय को यूं ही जाने ना Come दें, closer to God. परमेश्वर के नजदीक आ This जाइए, can change the direction of your life. वो आपकी दिशा को बदल देगा। Two people praying together, Cornelius and Peter praying together, that has changed the history of the world. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरनेलियुस और पतरस ने प्रार्थना किया और पूरे इतिहास संसार पूरी तरह से बदल गया। So prayer can change things for us. और प्रार्थना हमारे जीवन में सब कुछ बदल देता है। And it can even change the heart of Pharaoh. For Moses, God changed the heart of Pharaoh. It can change anybody's heart and it can bring favor for you. और फिर जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करके फिरौन के जीवन को बदल दिया, जब इतने कठिन व्यक्ति को बदल सकता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। I know that now there are many fears that you have, मैं जानता कि अभी हम सबके पास आपके पास बहुत से भय हैं many anxieties, और बहुत सारी व्याकुलता है many discouragements. और बहुत से निरुत्साह, But we know one thing. लेकिन हम एक बात को जानते हैं, When we spend time in prayer, और जब हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, God can really do great and mighty things in our life. और परमेश्वर हमारे जी ने बहुत से महान और अद्भुत कार्य को करता है। God can do wonderful things and change the history or the course of our future, and He can take away every concern that you have and bring a new revelation and a new way, direction in your life. और परमेश्वर हमारे जीवन से सारे मुश्किल और सारे जो परेशानी को हटाकर हमारे जीवन में वो एक नई दिशा को देगा। Don't try to do God's work. और हम Don't try to take the work of God in our hands and try to help God. और हम इसके लिए कोशिश ना करें कि परमेश्वर के कार्य को हम अपने हाथों में ले लें और उसके लिए हम परमेश्वर के लिए आसान करने के लिए हम कुछ कार्य को करें। What we need to do is to spend time in prayer. और हमें क्या करना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को व्यतीत करना है, Go closer to Him. और उसके नजदीक चले जाएं। We have a choice to make here. और हमें यहाँ पे चुनाव करने का अवसर When है। Paul and Silas, और जब पौलुस और सीलास, they were in the prison. और जब वो जेल में थे, They were in quarantine. और वो उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया There था, was no freedom they had. और उनके पास आजादी नहीं They had a थी, choice to make. और उनके पास चुनाव करने का मौका था। What the choice they made was to spend time in prayer and worshiping God. और उन्होंने क्या चुनाव किया कि परमेश्वर की आराधना करना और परमेश्वर के सन्मुख में समय को व्यतीत करने के That लिए, brought deliverance for them. और वो उनके लिए छुटकारों को लेकर That आया, brought freedom for them. और वो उनके लिए आजादी को लेकर आया। And that time took them to the next level of their life. और ये जो समय था उनको दूसरे स्तर पर ले जाने का समय आ गया। Don't focus on things that you cannot do at this time. और इस समय में उस चीजों के लिए आप ना सोचे जो आप नहीं कर सकते But हैं। what we need to focus on what we can do. और लेकिन हमें उसके और ध्यान को केंद्रित करना, जो कार्य को हम कर सकते We हैं। can worship God. हम परमेश्वर की आराधना कर We सकते can हैं, spend time in prayer. और हम प्रार्थना में समय व्यतीत कर Then सकते we हैं, can seek after the kingdom of God. और हम उसके परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। See, Moses tried to help God. अब मूसा ने परमेश्वर की मदद करने के लिए कोशिश की। He killed the taskmaster of Egypt, the Egyptian taskmaster, trying to help God. और उसने क्या किया कि परमेश्वर की मदद करने के लिए सोचकर उसने उस मिस्री को मार डाला। And he tried to speed up God's plan. और वो कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर का कार्य जल्दी से हो जाए। But that only delayed God's plan by 40 years. और लेकिन हम देखते हैं कि उसका कार्य जल्दी नहीं हुआ, लेकिन 40 साल उसको लगे वो कार्य को करने में। When we try to make things faster for God, और जब हम कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए जल्दी करने के we लिए, usually slow down things. और हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में उसको जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको धीमे कर रहे When we हैं। make things easier for God, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य कर ऐसे करते हैं कि उसका कार्य आसान हो it जाए, becomes harder. और लेकिन वो आसान नहीं होता, But कठिन what हो we जाता need to है। do, लेकिन हमें क्या करना we है, need to just go in the presence of God हमें उसकी उपस्थिति में जाना and say, है, Lord, let your will be done in my life. और हमें ये कहना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी जीवन पूरी हो जाने As दे। I said, many of you have lost your jobs. और मैं जैसे मैंने कहा कि हम में से कई लोगों की नौकरी चली गई Even है, we get prayer requests for people for new jobs. और इन दिनों में कई लोगों के फोन कॉल को मिल रहा है जिसमें लोग विनती कर रहे हैं कि प्रार्थना करें उनकी नौकरी के We लिए, are praying for you. और हम आपके लिए प्रार्थना कर But you रहे हैं, also spend time in prayer. और आप भी प्रार्थना में समय को बिताएं, Read the Bible. बाइबल को पढ़ें, Get closer to God. परमेश्वर के समीप आ Hear the जाएं, voice of God. उसकी आवाज को सुने, And when you spend time in prayer, God can do great and mighty और things. जब आप उसकी
उपस्थिति में प्रार्थना में समय को बिताएंगे तो आपके लिए वो महान कार्य को करेगा। See, don't try to manufacture our own miracles. और कोशिश ना करें कि अपने चमत्कार को हम खुद बनाने वाले हो जाएं। And don't try to answer our own prayers. और इसके लिए आप प्रयत्न ना करें कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हम स्वयं निकालें। We should never try to do God's job for Him. और हम कभी भी कोशिश ना करें कि परमेश्वर का जो कार्य है वो हम कर दें। But what we need to do? हम क्या करें? Stay humble. हम नम्र रहें Be patient. और धीरजमंद बने रहें Stay focused. और फिर ध्यान केंद्रित में And रखें keep praying. और प्रार्थना में बने रहें। God is a grand master. और फिर परमेश्वर जो हमारा ग्रैंड मास्टर है, He is a grand master. और वो ग्रैंड मास्टर है, He knows what move to be made. और वो जानता है कि कौन सा कदम आगे रखना है। The enemy is always there. और शत्रु हमेशा वहाँ पर है, But God knows how to get him. लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे उसके His पास जाना plans है। are better. उसकी योजना बेहतर हमारे His लिए, moves are better. उसकी जो गति हमारे लिए बेहतर But है। God's moves are only revealed in the presence of God. और परमेश्वर के चलन को हम जान सकते हैं उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा। He knows how to bring the checkmate, how to get the enemy. और वो जानते हैं कि हमारे जीवन के शत्रु को कैसे हम हराएं। But I and you need to do. और मुझे और आपको क्या करना है? Get closer to God. परमेश्वर के करीब आ Spend जाएं time in prayer. और प्रार्थना में समय को व्यतीत And He करें, will reveal His plan in our life. और वो अब हमारे जीवन में प्रकट करेगा उसके कार्य He will को, do miracles after miracles in your life. और वो आपके जीवन में चमत्कार के बाद चमत्कार करता Your जाएगा, life will become a miracle. और आपका जीवन चमत्कार का हो And every जाएगा, move will become a miracle. और आपका हर एक गति चमत्कार हो जाएगा Because you are closer to जब God. आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। So get closer to God. Spend time in prayer. और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। This is what the Bible says. ये बाइबल कहती है, Cornelius prayed regularly to God. बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस प्रतिदिन बराबर प्रार्थना करता था, And that made him as a channel of God's blessing to the generations of Gentiles all around the world. और उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ कि द्वार खुल गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य जाति के लोग उस द्वार के द्वारा परमेश्वर की ओर प्रवेश कर May पाए। the Lord bless each one of you through this word. और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष We'll be दे। spending some time in prayer for each one of you. और आज हम थोड़ा समय व्यतीत करेंगे आप लोग के लिए प्रार्थना करने But के लिए। before that, let's sing this beautiful song. आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। Told thy love to me, but I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. रे तू मुझको है मसीह हम चश्मा देखा रे तू मुझको है मसीह अपनी जर्नी पहलू पास। Let this be our prayer. Draw me nearer, nearer. और आज हमारी प्रार्थना हो जाने थी, परमेश्वर हाँ मुझे तू अपने पास ले चल। We want to pray for you. आज मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। We are receiving many reports of God's goodness and faithfulness and
answering the prayers of many people. और हमें कई लोगों से इस प्रकार के संदेश मिल रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा वो लोग अपने जीवन में कई आशीष और चमत्कार को पा रहे हैं। Though this was only intended for a family prayer time, but God is doing miracles left and right. और हमने अपने परिवारों के लिए इस प्रार्थना सभा को शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर कई लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत कार्य को कर रहा So if you है। have a need in your life, यदि आपके जीवन में कोई भी आवश्यकता है, I want to pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना And चाहता also I want to mention this. हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। Maybe you have never been to a church. और हो सकता है कि आप कभी चर्च नहीं गए You know, होंगे maybe you do not know much about church or the Bible. और हो सकता है कि आप चर्च के बारे और बाइबल के बारे ज्यादा कुछ नहीं But that जानते, is fine. लेकिन ये ठीक है। Cornelius was not a Jewish, he did not know much about God. और कुरनेलियुस वो यहूदी नहीं था, वो परमेश्वर मसीह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता But he was a था, good man. लेकिन वो अच्छा व्यक्ति था। And you know, because he is a good man, God drew him closer to और God. जो अच्छा व्यक्ति जब यीशु मसीह के करीब आया, Today you are listening to God's word और आज आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, because God has a plan for your life. क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। God wants to bless your life. परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता God है wants you to be drawn closer to Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके समीप आ जाएं। And He's the living God. वो जीवित परमेश्वर है And because of God's love for you, you are able to hear to these messages. और परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए आप इस संदेश को सुन रहे हैं। And coming to the Lord Jesus is very easy. और प्रभु यीशु के नजदीक आना बहुत सरल है। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी you हैं, can be there आप वहाँ पर वो in हैं, your home. आप अपने घर And में, just pray this simple prayer. और आप इस सरल से प्रार्थना That करें, Jesus, I am a sinner. प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, I have done mistakes in my life. मैंने अपने जीवन में गलतियाँ की हैं, But I want to come to you. और मैं तेरे पास आना चाहता Thank you हूँ। for coming down. और धन्यवाद हो तू इस पृथ्वी पे आने के लिए, Dying for the sins of the world. और इस संसार के लिए, पाप के लिए तू मरने के लिए। Jesus cleanse me from all my sins. प्रभु यीशु मेरे सारे पाप को धोकर शुद्ध Come कर, into my heart. मेरे दिल में आइए Be the Lord of my life. और मेरे जीवन के प्रभु बनिए। When you pray that simple prayer, और जब इस सहज की प्रार्थना आप करते you know, हैं, God, Jesus will come into your heart. प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आएगा, You'll be a new creation. आप एक नई सृष्टि बन Start जाएंगे reading the Bible. और आप बाइबल पढ़ना शुरू कर God दें will speak to your heart. और परमेश्वर आपके दिल से बातें He करेगा, will bless your life. वो आपके जीवन को आशीष करेगा। And if you have a need in your life, यदि आपके जीवन में कोई जरूरत maybe you है, are sick in your body यदि आप शरीर से बीमार and हैं you have a financial need in your life, और आपके जीवन में आर्थिक आवश्यकता I है, don't know what are your needs, और मुझे नहीं मालूम आपकी आवश्यकता क्या but है, I know one thing, लेकिन मैं एक बात को जानता that हूँ, Jesus knows all your needs and He is able to meet all your needs. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपकी सारी जरूरत को जानता है और वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। Shall we close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before your throne of grace. और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दया के अनुग्रह तले सिंहासन के तले आते Jesus, हैं। I pray for each and every one of your children who have needs in their life. प्रभु यीशु मसीह में तेरे सारे संतानों को जिनकी जो जरूरत उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray that you would meet all their needs. और मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी सारी जरूरत को पूरा कर। Every one of them who needs a miracle in their life, Jesus, I pray that you would do that miracle for them. और जिनको भी चमत्कार की आवश्यकता जरूरत है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में तो चमत्कार को कर, Help us to be people of prayer, और सहायता कर कि ये लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए, that we receive your miracles on a daily basis, ताकि हम आपसे प्रतिदिन आपके द्वारा आशीष को पाने वाले हो that जाए, we walk with you, और हम तेरे साथ चलने वाले, and that we bring glory to your name. और तेरे नाम को हम महिमा लाने वाले हो जाए। Thank you for hearing us, oh Jesus. धन्यवाद हो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना We सुनने के give लिए, you all the glory. और हम तुझे सारी महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. 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 Thank you once again for being with us. And tomorrow my son will be here. He is going to be leading in worship. और धन्यवाद आप लोगों के साथ समय बिताने के लिए, और कल हम ठीक 7 बजे मिलेंगे। और आज एलन हमारे साथ नहीं है, उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, लेकिन कल के दिन वो वर्शिप को लीड करेगा। आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कल ठीक 7 बजे करेंगे। And thank you for liking and sharing. And yesterday, Sharon, I want to say like yesterday, we had over 130 sharing. You know, thank you so much, and that means a lot. Some people are getting to hear God's word, and please continue to do that. Like it, share it. God bless you, and we love you.